Hello guys, this is Pawan Verma. I hope you all are doing well. I am here with Quantitative Aptitude Chapter Partnership. इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, उस पर हमने बेसिक चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस किया और 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। अभी मैं और इसको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे भी मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट सिंपल सा समझना है और अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। ओके, दिस ऑल क्वेश्चन विल बी रिलेवेंट टू योर एसबीआई, आईबीपीएस, जो भी बैंकिंग की एग्जाम होती है या फिर एसएससी की एग्जाम होती है उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू सब्सक्राइब आवर बैंकिंग एड्यूटेनमेंट यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of each and every videos, and as I always said that you will learn something new, some new shortcut that will help you to crack your exam. You can follow me on social media platform like Facebook, Instagram, Twitter. You can ask me any doubt, any queries over there. I will try to clear your doubt. Join our Telegram channel BSc Academy Nagpur, or else you can send your query on this WhatsApp number. This is our official WhatsApp number. Let's start this series, Partnership Part 2. This is our first question in Part 2, question number 6. Naveen and Kanan jointly started a business. Naveen invested 4 times as Kanan did. Okay, Naveen and Kanan. Two question is there. Naveen and Kanan. Naveen invested 4 times as compared to Kanan, right? And invested his money for double time as compared to Kanan. And he invested his money double time as compared to Kanan. Kanan, let's say Kanan invested for 1 year. So Naveen will invest for 2 years or 1 month or 2 months, right? Okay. Kanan earned 5,400. Then the total gain was how much? How much was the total profit? We have to find out. What is the ratio we got? This is 8:1. And Kanan earned rupees 5,400. Kanan part is 1 and this 1 indicate 5,400. So what will be the value of total profit? Total profit is 9 unit. So we have to find value of 9 unit. We know that value of 1 unit is 5,400. Then what will be the value of 9 unit? Multiplied by 9. 9 zeros are 0, 9 zeros are 0, and 9 fours are 36, carry 3, 45 and 3 is 48. 48,600 is the value of total profit. Total profit we got total profit, right? If we have to find value of Naveen, how much Naveen got, subtract 5,400. That will be like 43,200. 43,200 Naveen will got from the total profit and 5,400, and total profit is 4,600. Question was asking the total profit. Easy question था ये, right? तो समझते हैं, easy questions भी आएंगे, थोड़ा tricky questions भी आएंगे। आप वीडियो को जो है फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। जो इजी क्वेश्चन है खुद पहले ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को पहले पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए सॉल्यूशन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए एंड बी पार्टनर इन अ बिजनेस। ए कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 months, ओके, एंड बी रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। फॉर हाउ लॉन्ग बीज मनी वॉज यूज्ड। फॉर हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम पूछ रहा है कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो ए और बी दो बंदे हैं। ए इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल, राइट? जो भी टोटल कैपिटल है उसका 1/4 इसने इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब 3/4 ये इन्वेस्ट करेगा कैपिटल का। एंड ए इन्वेस्टेड फॉर 15 months. टाइम ऑफ ए इज गिवन 15 months, और टाइम ऑफ बी वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज लेट्स से x. Time of B is x months. So now we have to find this ratio, and after getting the ratio we got that B receive 2/3 of the profit. जो भी total profit है, profit का 2/3 part B को मिलेगा।
तो 1/3 पार्ट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, राइट। टोटल प्रॉफिट इज 100% या 1, उसमें से 2/3 बी को मिलेगा तो 1/3 ए को मिलेगा। इसको आप रेशियो निकालो, कैंसिल आउट करो, 4 4 कैंसिल, सी कैंसिल, दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 3, दिस इज लाइक 5:x। इस x की वैल्यू हमें पता चलेगी तो हम पता कर पाएंगे कि कितने मंथ के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। हमने देखा 5:x क्या आया, तो रेशियो की प्रॉफिट की रेशियो आ गई, और प्रॉफिट में देखा जाए तो 2/3 मिल रहा था बी को, 1/3 मिल रहा है ए को। तो टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 3 पार्ट है, राइट। इसका 2 पार्ट इसको मिल रहा है, 1 पार्ट इसे मिल रहा है। तो 1 की वैल्यू कितना आया, 1 की वैल्यू आया 5, 1 यूनिट की वैल्यू आई 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। 2/3 इसको मिल रहा है, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, 2/3 एक को मिल रहा है तो एक को 1/3 मिलेगा, मतलब टोटल प्रॉफिट हो गई 3। एक को मिल रहा है 2, एक को मिल रहा है 1। इस तरीके से ए को मिलेगा 1, बी को मिलेगा 2, और रेशियो आई थी 5:x। तो ये 1 इंडिकेट कर रहा है 5 को, तो 2 इंडिकेट किसे करेगा, 10 को। तो हमें 10x की वैल्यू हमने क्या लिया था, टाइम ऑफ बी, कितने मंथ के लिए बी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 10 मंथ्स, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, 10 मंथ्स के लिए बी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या कहता है, XYZ enter into partnership and their share are in the ratio 1/2, 1/3, 1/4। X Y Z रेशियो दिया हुआ है, किस तरीके से है, तो फर्स्ट वाले x की रेशियो है 1/2, this is 1/3, this is 1/4। After 2 months, X withdraws half of his capital, and after 10 months, a profit of 420 is divided among them. What is Y share? क्या क्या हुआ, तो रेशियो पहले इसको आप एक फ्रैक्शन को रिमूव करके एक नंबर मिल गया, तो 1/2, 1/3, ये जो नंबर है 1/2, 1/3, 1/4, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। and this is like 6 times, this is like 4 times, and this is 3 times, 6 4 3। आप इस तरीके से रख सकते हैं कि this is 6 rupees, this is 4 rupees, and this is 3 rupees। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट है। अब कह रहा है कि आफ्टर 2 months X withdraws half of his capital, यानी कि 6 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो 2 महीने के लिए था स्टार्टिंग में। 2 महीने के बाद क्या हुआ कि इसने हाफ विड्रॉ कर लिया, मतलब हाफ रह गया, 3 रुपए रह गई, ठीक है। पहले 2 महीने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट था 6, फिर उसके बाद उसने हाफ विड्रॉ कर लिया, एंड आफ्टर 10 months प्रॉफिट ऑफ 420 इज डिवाइडेड अमंग देम। टोटल प्रॉफिट बता दिया 420 रुपए हुए हैं। तो 2 महीने के बाद और 10 महीने, यानी कि पूरे 1 साल की बात कर रहे हैं। वाई ने कोई चेंजेस नहीं करी तो इसका 12 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जेड ने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इसका भी 12 मंथ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हो कितना जाएगा, 12 and 30, दैट इज 42, एंड दिस इज लाइक 48, एंड दिस विल बी 36। 6 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो 6 is to 8 is to 7। इस तरीके से XYZ का रेशियो आ गया। अब इस रेशियो में ये 420 डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे पूछ रहा है कि Y के शेयर कितना होगा। Y की वैल्यू है 8 पार्ट, तो Y शेयर विल बी, Y की शेयर कितनी हो जाएगी, तो Y की शेयर हो जाएगी 8/7 + 8, that is 15 + 6 21 of 420। This is 2 times, 2 into 8 is 16, 160 रुपीज Y की शेयर हो जाएगी। आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में रखा हुआ था, फ्रैक्शन में था 1/2, 1/3, 1/4। इसको हमने एलसीएम लिया, जिस तरह से आप एडिशन करते हैं उसी तरीके से इसको करना है। एलसीएम लिया तो आ गया 12, 2 के टेबल में 6 टाइम्स, 3 के टेबल में 4 टाइम्स, 4 के टेबल में 3 टाइम्स, 6 4 3। इस तरीके से आपका वैल्यू हो गया, टोटल 13, राइट। तो 6 4 3 आपका 6 रुपीज एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, 4 रुपीज वाई एंड 3 रुपीज जेड। इस तरीके से तीनों ने इन्वेस्ट किया। इसने 2 महीने के लिए किया और उसके बाद 2 महीने के बाद अपना हाफ इन्वेस्टमेंट निकाल दे रहा है, तो 3 रह जाएगा नेक्स्ट 10 मंथ्स के लिए। तो इस तरीके से इसका 42 आ गया, दिस इज 48,
एंड दिस इज लाइक 36, रेशियो आ गई इतनी सारी, तो y का शेयर निकल गया 160। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इजी है इस सीरीज में, सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ 8 is capital, 8 time of P is capital is equal to 10 time of Q is capital and 12 time of R capital, then out of the total profit of 2590 R will receive how much? Okay, तो क्या कह रहा है कि 8 times of P's capital is equal to 10 times of what? 10 times of Q's capital is equal to 12 times of R's capital। इस तरीके से है। तो क्या हम P Q R का रेशियो निकाल पाएंगे? दिस इज Q, राइट? हाँ, तो इसको कैंसिल आउट करते, कुछ कटेंगे। दिस इज लाइक 4 टाइम्स, दिस इज लाइक 5 टाइम्स, दिस इज लाइक 6 टाइम्स। P और Q की बात करें पहले, हमें पता है कि 4P इज इक्वल टू 5Q, तो P बाई Q का रेशियो क्या आएगा? 5/4। P बाई Q यानी कि P is to Q is 5:4, करेक्ट। और उसी के साथ Q और R की बात करें, 5Q is equal to 6R, तो हम लिख सकते हैं Q by R is equal to 6/5, यानी कि Q is to R is 6:5। तो अब P Q R का रेशियो बताओ क्या होगा? P is to Q is to R कितना आएगा? तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपको ये पता है कि A is to B, B is to C, इस तरीके से है, तो A B C कैसे निकालेंगे? A into B, राइट, B into B and B into C, इस तरीके से करोगे तो आपको A is to B is to C पता चल जाएगा। तो ऐसे ही करना है, P into Q, that is 6 into 5, 5 into 6 is 30 and 4 into 6 is 24 and 4 5s are 20। रेशियो अगर देखा जाए तो 15:12:10, इस तरीके से रेशियो आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट दैट इज 2590 R विल रिसीव हाउ मच? R को कितना मिलेगा? R की वैल्यू है 10, तो R शेयर विल बी दैट इज 10 बाई सम ऑफ द रेशियो, दैट इज 15 + 12 27 + 10 इज 37, राइट। एंड टोटल प्रॉफिट थी कितनी? टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ लिखना है, टोटल प्रॉफिट कितना था भाई? तो 2590 में आपको ये कितना टाइम्स आएगा देखो, 7 के टेबल में 9 कब आता है? 7 टाइम्स में, राइट। तो 30 into 7 is 210 and 49, 70 टाइम्स आएगा ये। तो 70 into 10 will be 700, तो R का शेयर हो जाएगा 700 रुपीज, राइट। ये 70 टाइम्स जाएगा, 70 into 15 करेंगे तो आपका P आ जाएगा, 70 into 12 करेंगे तो Q का वैल्यू हो जाएगा, 70 into 10 करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 800। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल था। ये इसमें क्या था कि 8 टाइम्स ऑफ P कैपिटल इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ Q, ऐसा था। तो हमने क्या किया, P बाई Q का रेशियो निकाला, Q बाई R का रेशियो निकाला, उसके बाद रेशियो को कंबाइन किया, P Q R के फॉर्म में कंबाइन किया। तो छोटे छोटे स्टेप यूज हो रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चीजें यूज हो रहा है। पार्टनरशिप में भी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, P and Q invested in a business. They earned some profit which they divide into in the ratio of 2:3. P and Q invested some amount in a business. P और Q है, दोनों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। They earned some profit and they divided the profit, जो भी प्रॉफिट आई, ठीक है, प्रॉफिट को 2:3 के पार्ट में P और Q आपस में डिवाइड कर दिए। If P invested rupees 30,000, then the amount invested by Q is how much? Q कितना इन्वेस्ट करेगा? टाइम की बात नहीं कर रहा है, मतलब टाइम दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो ये 1 कैंसिल। अब देखो तो ये रेशियो इसी से आएगा। अब 30,000 कैपिटल इनटू टाइम इसका, कैपिटल इनटू टाइम इसका,
तो अब दोनों में टाइम इक्वल है, तो इसी की रेशियो बन के आएगी अब जो आएगी। तो 30,000 की वैल्यू आई 2, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 30,000 की वैल्यू आई 2 यूनिट, तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15,000। 15 इंटू 3 इज 45,000। तो इसका मतलब क्या पता चला कि क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट था 45,000। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। बड़ा आसान सा सीरीज था ये, बड़ा आसान सा, सारे क्वेश्चन इजी थे पार्टनरशिप के ऊपर। बस कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम को यूज कीजिए। अभी घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो आप धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को क्लियर कीजिए, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो भी एग्जाम आए आप पहला ही एग्जाम क्रैक कर लो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की या जो भी करने वाले हैं। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।